13th class, I think. Now I'm sharing my screen. Let me know whether it is visible to you. Now Tadagi Mudra is there on screen. So Tadagi means, a pond or, a cavity type structure. So this cavity is your abdominal cavity, all right? So you have to sit, with legs stretched out in front of your body and the feet slightly apart, not very much close, not very far from each other. And the legs should remain straight throughout the practice. Place your hands on the knees first, keeping the head and spine straight. And in every mudra, you have to close your eyes. So here also you have to close your eyes and first relax your whole body, especially the abdominal area. And you have to lean forward, all right, and grasp the big toe with the thumb and index and second finger and keep the head facing forward, all right. You don't have to bend your head. And inhale slowly and deeply, expanding your abdominal muscles to full extent, like completely you have to expand, and you have to retain the breath inside for a period without straining the lungs in. So and then you have to slowly exhale and then relax the abdomen and maintain the hold on the toes. Now repeat this breathing practice uh, as you feel comfortable, maybe 5 times or 10 times. And then release the toes and return to the starting position. This is your one round. So that way you have to practice 3 rounds or more than that. So you have to when you contract your abdominal inside, the cavity forms like a pond type structure, or in Hindi it is called तालाब ना, छोटा सा जो तालाब है उसकी तरह बन जाती है आकृति आपके एब्डोमेन की। तो तडागी मुद्रा में हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे सामने की तरफ, नीज जो है वो स्ट्रेच रहेंगी, नेक और बैक पूरा तरह से सीधा रहेगा, और आपको अपने हाथों को स्ट्रेच करके और अपने टूल्स को पकड़ना है, अपने थंब से अपने अंगूठे और जो पहली 2 फिंगर होती हैं, पहली और जो आपकी बीच वाली जो उंगली होती है, उससे आपको अपने जो पैर का अंगूठा है उसको पकड़ लेना। तो इसमें आप ये देखोगे कि आपका चेस्ट जो है वो पूरी तरह से ओपन अप है, और ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ये इनहेल करेंगे और फिर ब्रेथ को होल्ड करेंगे। एब्डोमेन को पहले आपने अच्छी तरह से स्ट्रेच आउट करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, नेक को सीधा ही रखना है, हेड को सीधा ही रखना है, आंखों को बंद रखना है। पूरा कंसंट्रेशन जो है उस कैविटी की तरफ आपका होना चाहिए, और आपको ये ब्रीथ होल्ड के साथ ये प्रैक्टिस को मतलब अपने हाथों को पैरों की पोजीशन सेम रखते हुए होल्ड करना है जब तक आप होल्ड कर सकें। फिर धीरे धीरे आप इनहेल करते हुए जो है एक्सेल करते हुए आप अपने ब्रीथ को नॉर्मल कर सकते हैं। जो पोजीशन है आपके हाथ पैरों की, इसको ऐसे ही रखना है, और इसी तरह से जो है बहुत बार इस क्रिया को दोहराना है, मतलब 3 बार 5 बार। 5 की जगह पे जो इसका एक सेट होता है, एक राउंड जो होता है वो इस ब्रीदिंग 10 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ इसको करते हैं। मतलब आपने इनहेल किया, उसको होल्ड किया, उसके बाद में फिर से रिलीज कर दिया, फिर इनहेल किया, फिर होल्ड किया,
फिर आपने एक्सेल कर दिया, फिर इनहेल किया, फिर होल्ड किया ब्रेथ को और एब्डोमेन की पोजीशन को, फिर आपने रिलीज कर दिया। तो इस तरह से करके एक सेट बनता है। तो 3 से 5 सेट तक इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। Now, because physically the awareness should be on your abdomen, that means your Manipura chakra. And if some women who are pregnant or suffering from, people suffering from hernia, so they should avoid this practice. But overall, the benefits are like it relieves tension, which stored in your diaphragm area, your pelvic floor, and tones the abdominal organs, stimulate the blood circulation to these areas. And also, if there is a forward bending, right? So, stomach stretches, all the organs in your chest and heart region. So, and diaphragm also, it has a very good pressure. So also your pelvic floor is stretched completely because your legs are fully stretched, your spine is stretched and slightly bent. So your pelvic floor has a muscles who are there in your pelvic region. They are strengthened up, and it creates pressure throughout your trunk area. So that way, it is, raises the prana from your abdominal region, your Manipura chakra. So it is having such benefits. And if, if you release the hold on toes between breaths, so if the position becomes uncomfortable, so you can release the hold. It's not, you have don't exert too much on your breath and on your body posture. So that way this mudra is performed. तो बेनिफिट्स इसके क्या हैं? हमने अभी देखा कि जो आपका स्पाइन है ये स्ट्रेच हो जाता है, और साथ साथ में जो प्रेशर पड़ता है ये आपके एब्डोमिनल रीजन पे पड़ता है, पेल्विक रीजन पे पड़ता है। जो नीचे का पोर्शन है उसकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं। आपके पूरे लेग्स की मसल्स जो हैं, स्पेशली जो बैक साइड में जो मसल्स होती हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच्ड होती हैं। और आपके आर्म्स की मसल, शोल्डर मसल्स, आपका चेस्ट एरिया, ओवरऑल जो है स्ट्रेचिंग पूरी बॉडी की बहुत अच्छे से होती है। वो एब्डोमिनल के ऑर्गन्स स्ट्रेंथन होते हैं, मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो और मणिपुर चक्र पे इसका खास जो है असर पड़ता है। तो इस तरह से ये मुद्रा आपकी तडागी मुद्रा हुई। अब लास्ट मुद्रा जो है वो है विपरीत करनी मुद्रा। ये कुछ इस तरह से की जाती है, पोस्चर में आपको दिख रहा होगा। So what you have to do, you have to, viparit karni means inverted, you can say attitude, psychic attitude. So you can assume viparit karni asana also. You have to bring both legs, together over your head so that the eyes look straight up at the feet. So your eyes and your tip of your toes, they should be in the same line. You have to close the eyes and relax the whole body, and this is the starting position. And you have to fix your awareness at your Manipura chakra also in this mudra and in the spine and directly, behind your navel. So you have to inhale slowly when you raise your both legs up and deeply, and it is recommended that you do Ujjayi breath, Ujjayi pranayam you do. So simultaneously, you have to feel that breath and consciousness moving from your Manipura chakra to your Vishuddhi chakra. Vishuddhi chakra is not very much affected, but slightly
it is affected as your chest area is slightly lift up. But basically, Manipura chakra is having a very good, you can say, stimulation will be there at that area. So you have to practice this depending upon your condition, like from 5 rounds to 7 rounds or 10 rounds. All right, but just make sure that you are comfortable in doing this practice. Don't exert your body too much. Now, if the pressure builds up, in the head, or you feel some uncomfortable, like on your chest area or neck area, so you just end this practice. And gradually, if you're comfortable, you can increase the number of rounds, like for 10 to 20 rounds. It takes, a period of a month, you can say. And the length of inhalation and exhalation will increase, spontaneously over the time. So this awareness posture, as I said, it's a slightly inverted posture, all right? So you have to aware of your breath and spiritually on your Manipura chakra और विशुद्धि चक्र. तो विपरीत करनी क्रिया के लिए आपको सुपाइन पोस्चर में लेट जाना है और इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है और इस तरह से आपको इन लेग्स को उठाना है. आप अपने पाम्स का सपोर्ट ले सकते हो हिप एरिया पे या पेल्विक एरिया पे. वो इस तरह से पोजीशन रहेगी. लेग्स जो हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहेंगे 90 डिग्रीज के एंगल पे अपर बॉडी से. और आपको इस तरह से हिप को पुश करना है कि आपके लेग्स की जो पोजीशन है वो इस तरह से हो जाए कि जो टिप है आपके टोज के और आपकी आंखों के जस्ट ऊपर जो है टिप ऑफ टोज होना चाहिए. तो इस तरह से जो है वो बॉडी का पोस्चर बनना चाहिए. अब इसमें हम देख रहे हैं कि लेग्स जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है. पूरा जो बॉडी वेट है आपका वो नेक पे और शोल्डर पे है और आपके एल्बोज पे है, पाम्स पे है. तो रिस्ट जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनती है, लेग की मसल्स होती हैं, लेकिन जो असर पड़ता है इसका वो एब्डोमिनल एरिया पे पड़ता है. और थोड़ा बहुत जो है वो आपका विशुद्धि चक्र, जो आपका नेक पोर्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि आपकी बॉडी आपने थोड़ी ऊपर कर ली है. तो जब ऊपर करेंगे तो चेस्ट जो है वो नेक के पास में जाएगा. आपका जो एब्डोमिनल रीजन है वो थोड़ा ऊपर आएगा और जो आपका थ्रोट रीजन है, लंग और हार्ट का रीजन है, वो नीचे आ जाता है. तो इसलिए थोड़ा सा इन्वर्टेड पोस्चर में इसको काउंट करते हैं, इन्वर्टेड आसन में. और मणिपुर चक्र पे जो है इसका असर पड़ता है. सो इसको भी आप दो जो है 7 से 5 से 7, 7 से 10 इस तरह से कर सकते हैं. अवेयरनेस आपको ब्रेथ पे रखनी है. आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे मुद्रा में. यदि आप आसन करते हैं तो आप खुली रख सकते हैं उसको. और मुद्रा में थोड़ा सा अवेयरनेस जो है वो आपको ले जानी चाहिए अपने विशुद्धि चक्र पे और अपने मणिपुर चक्र पे, या फिर दोनों में बारी बारी से आपको मूव करना चाहिए अपने कॉन्शियस लेवल को. So, but this practice, if your body is not healthy, you are feeling some, sickness or illness, or you are suffering from high BP or heart disease, or some thyroid problem. So, in that condition, avoid this practice, because it is inverted posture. So, it is done with very much care. And benefit wise, so this practice is, it balances because some pressure will be there on your neck and on your throat. So thyroid activities are regulated, balanced by this practice. And the energy flow will be regulated in this area. And flow of prana in ida and pingla nadis is also balanced. So this resulting equal flow of breath, equal flow
equal, quantity of inhalation and exhalation with both the nostrils. So both the nostrils get activated. So balancing effect also helps, to prevent the disease on a physical or mental part, because your brain, sympathetic and parasympathetic portions all get activated because it is slightly inverted posture. So your metabolic rate also increases when this mudra is practiced for some more period, like some extended period. So this is all about विपरीत करनी. तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि ये विपरीत करनी है ऊपर की तरफ, जो है आप अपने लेग्स और हिप्स को, जो आपके नीचे बॉडी का निचला पार्ट है, उसे आप ऊपर ले जा रहे हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका नीचे की तरफ हो जाता है इसमें, तो विपरीत करनी इसलिए कहा गया. तो इसमें आप के जो है लेग्स की मसल्स और ये होती हैं, लेकिन साथ में ही क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड पे जो इफेक्ट आता है, उससे बहुत सारी चीजें, जैसे मेटाबॉलिक रेट है आपका, ये इम्प्रूव होता है. साथ में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ जाता है हार्ट से इजीली. ठीक है, तो दोनों जो सिस्टम्स हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम, दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों बैलेंस होते हैं, दोनों नॉस्ट्रल्स की से जो ब्रीदिंग है, क्योंकि इसमें भी आपको अवेयरनेस ब्रीदिंग पे रखना है और चक्र पे रखना है. तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ये इससे रेगुलेट होती हैं, बैलेंस होती हैं. तो ये जो है हमारी मुद्रा यहाँ पर कंप्लीट होती है. तो ये मैं ये स्लाइड को बंद करती हूँ और हम दूसरा जो है वो देखते हैं. मेडिटेशन जो है वो आपका नेक्स्ट है. दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड मेडिटेशन की? यस मैम. ऑलराइट. तो मुद्रास हमने कंप्लीट कर लिया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई. ये लास्ट टॉपिक है आपका मेडिटेशन. क्या समझते हैं आप मेडिटेशन से, कोई बताइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? बहुत यूज होता है ना ये वर्ड. मन को शांत करना मैम, मन की जो विचार चल रहे हैं उसको एक जगह कंसंट्रेट करना. और कोई बताइए. जो मन में आता है बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है. मेडिटेशन हम जनरली करते भी हैं, करवाते भी हैं. यदि आप कहीं टीचर हैं तो मतलब इससे में आप क्या करते हैं, क्या आपका, जैसे कोई पोस्चर कर रहे हो आप, कोई प्राणायाम कर रहे हो, तो उसका एक मकसद होता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं उसको. जैसे आप आज क्लास अटेंड कर रहे हो, उसका भी एक पर्पज है कि भाई आपको एक एग्जाम क्लियर करना है. उसी तरह से मेडिटेशन जो हम करते हैं उसका क्या मतलब क्यों करना चाहिए या क्यों करते हैं, क्या है ये प्रैक्टिस, एक दो सेंटेंस में आप बता सकते हैं. अल्टीमेट एम आत्मा का परमात्मा से मिलने को होना, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, ठीक है. और Meditation is a continuous process to attain the liberation. ओके, ठीक है. और कोई? We can say mental relaxation. यस, कहते हैं, कह सकते हैं आप,
क्योंकि देखिए, जिस तरह से हम अपनी बॉडी को चलाने के लिए खाना खाते हैं ना, ताकि हमारे को फिजिकल एनर्जी मिले, है ना, उसके लिए हम थोड़ी फिजिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। और काम करने में जब हम काम करते हैं या खाना खाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो फिजिकल बॉडी तो आपकी इन्वॉल्व होती ही है, साथ में आपका मेंटल जो स्टेट है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसमें। तो फिजिकली तो हम अपने आप को फिट रखने के लिए खाना अच्छा खा लेते हैं, और क्या कहते हैं, फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, डल और लेथार्जिक वे में हम नहीं रहने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से आपका मेंटल स्टेट भी जो है वो अच्छी तरह से काम करे, आपके जो थॉट्स हैं वो अच्छे हों, आप कोई भी काम करने के लिए अच्छी तरह से प्लान कर सकें उसको, है ना। और कोई भी चीज आप जब करते हैं, पहले वो थॉट में आती है आपके कि ये करना है, फिर आप करते हैं, है ना। मतलब कि पहले आप जो है, बुद्धि जो है वो काम करती है, फिर फिजिकली वो प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो चीज आपको चला रही है, उस पे भी ध्यान देना, वो ढंग से चले, है ना, ढंग से काम करे, ढंग से सोचे, क्योंकि यदि सोच अच्छी नहीं है तो काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। तो आपका जो थॉट है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, आपके जो इमोशंस हैं, उस पे एक तरह से कंट्रोल होना, एक तरह से आप कह लो कि अ, उसका फूड है ना, एक रिलैक्सेशन। यदि दिमाग में बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं हुआ, उसने ये कह दिया, वो कह दिया, मतलब दिमाग जो है कभी शांत नहीं रहता। कहते हैं ना, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है लेकिन दिमाग हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो जब 10 तरह की चीजें चल रही हैं, तो आप एक काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप जिस तरह से आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे रीडिंग कर रहे हो, या आप लैपटॉप पे अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, या आप सिंपल वॉकिंग कर रहे हो, या आसन ही कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस ही कर रहे हो, जब तक आपका दिमाग आपके शरीर के साथ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब तक वो काम कभी भी कहना चाहिए अच्छी तरह से आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। कुछ जब आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो उस काम को करने के लिए। जैसे आप यदि योग प्रैक्टिस कर रहे हो, दिमाग कहीं और है आपका, और आसन लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन नहीं है आपका। प्राणायाम आप कर रहे हो, दिमाग कहीं और है, ये करना है, वो करना है, या फिर किसी की बातें दिमाग में चल रही हैं, तो वो आप काम पूरी तरह से कभी भी नहीं कर सकते। चाहे वो सिंपल आसन हो, या फिर कोई आपका ऑफिशियल वर्क हो, या कोई फैमिली से रिलेटेड कोई टॉक हो, या कोई इशू हो। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, उसमें कोई चीज, बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं, उसको भी टैकल करना होता है। साथ में आपने जॉब भी करना है, कुछ और भी काम करने हैं, आपकी फिजिकली भी फिटनेस देखनी है, तो इसके लिए दिमाग लगता है। तो दिमाग के लिए एक कसरत है, दिमाग के लिए एक फूड है, दिमाग के लिए एक एनर्जी है, दिमाग को रिजुविनेट करने के लिए एक प्रैक्टिस है, उसे हम कहते हैं मेडिटेशन। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जिस तरह से हम बाकी कामों के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे एक सिंपल है आपका लैपटॉप जो है वो दिन भर काम करता है और डिस्चार्ज हो जाता है। आप क्या करते हो, उसको शांति से एक जगह लगा देते हो चार्जिंग पॉइंट पे, वो शांति से पड़ा है और चार्ज हो रहा है, क्योंकि आप उसमें उस समय काम नहीं कर सकते, वो तो डेड सा हो गया है। तो थोड़ी देर उसको रेस्ट करने देते हो, फिर वो चार्ज हो जाता है, फिर आप उस पर काम करने लग जाते हो। तो उसी तरह से मेडिटेशन भी एक माइंड की रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिसमें कि आपको अपने माइंड को काम नहीं देना है, उसको रिलैक्स करना है। और ये रिलैक्सेशन इस लेवल तक पहुंच जाए कि आप इस दीन दुनिया जो कहना चाहिए
जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, यदि आप उससे डिटैच हो जाओ फॉर सम टाइम एंड टू बी विद इन योर सेल्फ, टू बी व्हाट यू आर, यदि आप यहाँ तक पहुंच जाओ डिटैच होके इंटर हो आप, तो फिर वो आती है कि आत्मा परमात्मा, इंडिविजुअल सोल टू द सुप्रीम सोल कनेक्टिविटी। और जब यदि आप वहां पहुंच जाओ, हालांकि ये बहुत प्रैक्टिस से आता है, इतना इजीली नहीं है, क्योंकि वी आर एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स इन अवर डेली रूटीन लाइफ। तो यदि वो स्टेज आ जाए आपके मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते 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 करते, जब आप इस प्रैक्टिस में मास्टर हो जाते हो, तो फिर धीरे 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 आप एक्सटर्नल जो चीजें हैं उससे अपने आप डिटैच हो जाते हो। लेकिन ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं माइंड के लिए, पीस के लिए, है ना, तो ये जो है, अभी हम उतना हाई लेवल पे नहीं जाएंगे कि मोक्ष या फिर इंडिविजुअल सोल टू सुप्रीम सोल, ये जो है सुप्रीम स्टेज है मेडिटेशन की। लेकिन अभी हम ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इट्स just to handle the emotional quotient of our mind, uh, to allow this our mind to remain relaxed, at least during the period of meditation or dhyan. So you get control over basic cause of mental agitation. So some techniques are given by the devotees, by the many institutions. So we'll learn those techniques here. So meditation practices or processes are to provide deep rest to mind and body by allowing mind to calm down. मतलब आपको क्या करना है, अब ऐसी कोई प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका बॉडी तो रिलैक्स हुई हो, बॉडी के साथ में आपका माइंड भी रिलैक्स हो, क्योंकि बॉडी तो रिलैक्स हो जाती है शवासन में या फिर आप जब सोते हैं तब रिलैक्स हो जाती है, लेकिन माइंड रिलैक्स नहीं होता। तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट हम डालते हैं। एक प्रैक्टिसेस जो हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने, बहुत सारे महर्षि ने, योगीज ने दी हैं, उन मेडिटेशन टेक्निक्स को हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, जिससे कि माइंड जो है आपका काम डाउन होता है, क्योंकि माइंड 24 घंटे काम करता है, अब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, प्रोसेसिंग चलती रहती है, एनालिसिस चलता रहता है। भले ही वो आप उस पर ध्यान देते हैं, कई बार आप नहीं देते हैं, कई बार इतनी सारी चीजें होती हैं कि आपको ही समझ में नहीं आता है किस पे ध्यान दें, किसको हम हटाएं। तो जब आपका माइंड काम डाउन होता है, तब आपको समझ में आता है कि मुझे किस पे फोकस करना चाहिए, किसको प्रायोरिटी बेस पे मैं पहले हैंडल करूं, फिर दूसरे को देखूं, फिर तीसरे को देखूं। तो इस तरह से meditation is deep relaxation of all parts of your body, then reduce metabolic rate by slowing of breath. ब्रेथ को स्लो करना, स्लो का मतलब ये है कि आपकी ब्रीदिंग इतनी गहरी हो जाती है, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग एंड स्लोली यू हैव टू एक्सेल. So some the breathing process, your inhalation and exhalation get slow down. अपने जो सांसों की जो गति है इसको हम धीमा करते हैं, पूरा जो ध्यान है वो दिमाग पे। तो इस जो कामनेस आती है, जो पीस आती है आपके माइंड को, वो हमारा मेन पर्पस है मेडिटेशन का. एंड देन कंटिन्यूअस अवेयरनेस मीन्स इफ यू become master in meditation, or get some perfection doing meditation, so after that this awareness of your mind and your body and your thoughts and emotions will be continuous process. तो ये एक हैबिट में आ जाती है चीज. तो जो मॉडर्न रिसर्च है, they have you can say introduced these techniques of meditation and steps, various steps in various types of meditation. The main objective is same,
to calm down, to relax our mind and also our body too. But modern way of modern yogis, these processes, especially they experiment on different ways to different you can say the path, but all paths go at the same and the aim is same, just to relax, to calm your mind. तो जो बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो दी हुई हैं बहुत सारे योगी से या जो रिसर्चर्स हैं, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से जो है वो मेडिटेशन टेक्निक्स जो है वो दी है। तो जो सबसे फर्स्ट मेडिटेशन टेक्निक है वो है हमारी ओम मेडिटेशन और प्रणव और सोहम और अजप अजप। सो ओम मेडिटेशन इज जो है वो ओम पे कॉन्सेंट्रेशन है। प्रणव भी क्या है प्रणव? व्हाट इज प्रणव? Same as we'll chant Om. प्रणव को ही जो है ओम के फॉर्म में ही जो है उसको हम जपते हैं, क्योंकि it is said कि without any object or a guru or your east or whatever supreme you feel, whatever belief system you have, without some physical entity it is difficult to concentrate, it's difficult to meditate. So that's why there are so many objects or symbols or deity, they different you can say the shape or size or the different physical entities or deities are there, just to focus on that, just to detach all other things of your external world and just focus on that particular uh, physical entity or whatever there in your mind or your belief system is attached to that. So that Om meditation is concentrating on Om, whether it is a physical form of Om or the letter, how it is written, or the pronunciation, how you pronounce Om. And then Soham. Soham is, So means, you can say when you inhale, then a sound which comes, it relates it to so. So, and when you exhale, then it is hum. So it is said that so means you have to concentrate on a Shiva or consciousness, the Chetana, Chetan or, consciousness, awareness, you can say, or the Brahma, you can say, when you inhale. And hum means I or self or the Jivatma that we call the one self, which exists in our physical body during exhalation. So you don't have to, pronounce so and hum. You just concentrate on the meaning, all right, the awareness, all right, inhalation and exhalation. So full awareness should be on your breath. So what are the simple process of doing meditation? You have to sit in any Padmasana or any comfortable posture and with your spine, straight. And you have to close your eyes, relax your whole body. And then after stabilizing your body, your mind, just relax. And then your emotions, the mind which is going on through so many forms of emotions or feelings. So, and slightly you have to concentrate on your breath, and feel that breath, whether it is a cool air or a hot air which is entering through your nostrils and, warm air coming out. So you have to, before that you can do 4-5 rounds of Brahmari. It also helps to relax your mind, body and emotions. And then repeat this Brahmari in the mind without,
making sound, and feel those vibrations in your mind and all over your body, and learn to enjoy that state of inner silence. And then after this, being in the state of inner silence, be in that state as much as you can, or as much as you feel feel to sit. तो इस जो मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन आप करेंगे, जैसे कि आप ओम मेडिटेशन करें या कोई दूसरा भी करें, तो उसमें ध्यानात्मक आसन में आपको बैठना है कंफर्टेबली। स्पाइन को, अपने जो रीढ़ है उसको, बैक जो है उसको सीधा रखें। धीरे, जब आपने फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कर दिया, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। जो आवाजें आती हैं उसको धीरे धीरे आप सुनिए, उसे फील करिए। फिर धीरे धीरे आप अपने इमोशंस, आपके जो थॉट्स हैं, क्या भाव चल रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, उसको सोचेंगे, उसको रिलैक्स करेंगे। और धीरे धीरे जब वो थॉट्स आएंगे, चले जाएंगे, तब फिर आपको धीरे से अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेशन करना है। इनहेलेशन और एक्सेलेशन पे कंसंट्रेशन करना है कि कैसे ब्रेथ आ रही है। जस्ट फील दैट ब्रेथ। उस एयर को आपको फील करना है कि उसका टेम्परेचर कैसा है, वो गर्म है या ठंडी है, वो नाक से आपके अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन सा एरिया एक्सपैंड हो रहा है जब हवा अंदर आती है, कौन सा एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है जब हवा बाहर चली जाती है। तो इस तरह से आपको ये करना है। जब आप ये सब कर लें, उसके बाद में फिर आप वो ओम चैंटिंग करना है। वैसे जो चैंटिंग है, जो भी मेडिटेशन में की जाती है, वो जो है फिजिकली या बोल के नहीं करते हैं, वो इंटरनली की जाती है। जैसे ओम चैंटिंग भी है, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, the letter Om, how it is written, and then you just chant it mentally, आपको internally जो है, you have to chant that Om, and allow the body, to repeat this Om continuously, without any breath. Because you already are at rest, your body is at rest, your mind is at rest, your emotion, your thoughts, all are in a settled position. So you have just to concentrate on your breath and then Om. That is the Om chanting. If there are any distractions, then you have to chant Om, much faster, so that the mind will be busy, completely busy in chanting Om. This number of Om, observe the gap uh, between these two chanting. And, if you are doing it, sometimes you are just involved so much, there will be much gap between the, Om chanting, wider and wider between the two omkars, and then diffuses into silence, and you are in the silence. So this experience of inner silence, helps to expand, from the, you can say, three-dimensional awareness of your body and all, beyond the limits of the body, you can say. So that depth of silence becomes deeper and more, expansive, you can say. And if you merge completely into this deep silence, then you reach the stage of ajapa. Ajapa means no repetition. No repetition. It is automatically, you are in the place, in the phase of deep silence. And that silence is the source of creativity. This is the source of power. This is the source of, knowledge, or you can say bliss. So that's what you want to attain, right? So remain in this state, for a while, and then from that deep ocean of silence,
just feel it in your heart region, and then just diffuse into your entire body and all the space around. And then you will enjoy this beautiful vibrations. And then slowly, be aware of your surroundings and of your body. And then slowly you can blink your eyes, and gently you can open your eyes and come out of the meditation. तो इस मेडिटेशन में आप क्या करेंगे, सिंपल से बैठ जाएंगे धीरे से. उसके बाद में इंटरनली जब आपने अपने बॉडी को रिलैक्स कर लिया, माइंड को रिलैक्स कर लिया, इमोशंस को सेटल डाउन कर लिया, थॉट्स को आपने जो है एक तरफ कर दिया, तो धीरे धीरे आपने ओम चैंटिंग करनी है इंटरनली, है ना, अंदर ही अंदर आपको जप करना है इसका. और जब आप जप करते करते इतना इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि जो 2 ओंकार के जप हैं उनमें धीरे धीरे जो है वो कहना चाहिए कि टाइम बढ़ता जाता है, गैप बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे आप ओम चैंटिंग से एक डीप साइलेंस में पहुंच जाते हैं. तो वो जो स्टेज है वो अजपा जप है, जिसमें कि अजपा मतलब कोई जप नहीं करना है ना, आप एक इनर साइलेंस के मोड में आप आ जाते हैं. और ये जो इनर साइलेंस है, ये जो मतलब एक तरह से मर्जिंग है आपके बॉडी की, आपके माइंड की, आपके सोल की, इमोशंस की, थॉट्स की. तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट होती है सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ ब्लिस. तो वो अचीव होती है धीरे धीरे, पर ये एकदम से नहीं आता है, धीरे धीरे जो है वो प्रैक्टिस से आप इस तक पहुंच सकते हैं. तो ये एक मेडिटेशन है. उसके बाद में योग निद्रा है. योग निद्रा भी, जो इसको मेडिटेशन नहीं कहेंगे हम, योग निद्रा एक रिलैक्सेशन कहना चाहिए टेक्निक है. तो योग निद्रा, निद्रा मतलब है कि आपका स्लीप, लेकिन योग निद्रा मतलब यौगिक निद्रा से मतलब ये है कि आप एक तरह से नॉट अ प्रॉपर स्लीप. प्रॉपर स्लीप कैसी होती है, आपको कोई अवेयरनेस नहीं रहती है अपने बॉडी की. आप कई बार सो जाते हो, किसी करवट सो रहे हो, आपको पता ही नहीं है, काफी देर तक सो जाते हो उसी जगह पे, उसी पोस्चर में, और फिर आपको जब ऐसे लगता है तब आप फिर करवट लेते हो, आपको मतलब पता नहीं रहता, कई बार इतनी डीप स्लीप में चले जाते हो. बट नो, योग निद्रा इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्लीप. इट इज अ स्लीप विथ अवेयरनेस, राइट. वैसे देखा जाए तो स्लीप में क्या होता है, जब आप सोते हैं तब आपको बॉडी अवेयरनेस नहीं रहती है, लेकिन इसमें आपको बॉडी पे अवेयरनेस डालनी है. मतलब कि आप अपने थॉट से, आप अपने विचारों से, साइकोलॉजिकली, मेंटली आप अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हो. यही रिलैक्सेशन आपको स्लीप में मिलता है, लेकिन वो स्लीप आपकी 6 आवर्स 7 आवर्स की होती है. लेकिन वही जो रिलैक्सेशन आपको 20 मिनट्स और 25 मिनट्स 30 मिनट्स की योग निद्रा में उतना बॉडी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इसको आप खुद करते हैं अपने, या तो गाइडेड वे में होता है ये, या आप खुद भी कर सकते हो. तो एक तरह से आपको इसमें लेट जाना है, जैसे हम शवासन में लेटते हैं, मतलब बॉडी दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को जो है वो छत की तरफ रखेंगे, दोनों लेग्स को सीधा रखेंगे, तो उसको आउटवर्ड रखेंगे, हील्स के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हो. और फिर धीरे धीरे आप अपने बॉडी को रिलैक्स करने के साथ साथ में माइंड को थोड़ा सा सेटल डाउन करेंगे, और ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा देर. और उसके बाद में ये संकल्प रखेंगे कि मेरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो रही है, या कहना चाहिए कि इसमें जो भी स्ट्रेच आया है या जो भी परेशानियां हैं, मतलब ये परेशानी आपके फिजिकल दर्द से भी हो सकती है, या आपने कभी आसनों में कभी कुछ स्ट्रेच हो जाता है, या कुछ काम करते समय स्ट्रेच आ जाता है, या कोई फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है,
तो उसके लिए भी आप अपने आप को इसमें रिलैक्स कर सकते हो कि वो सब ठीक हो रहा है। और फिर आपको अवेयरनेस देनी है अपने पूरी बॉडी पे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज, है ना, ईच एंड एवरी your toes, ankle, right? Your calf muscles, your knees, your thigh muscles, your pelvic region, your abdominal region, chest area, all right? Your throat area, your shoulder, your arms, your fingers, wrist, elbows, in सारे organs, then your neck portion, all right, your facial muscles, your ears, your all sensory organs, and your brain. So top to toe to your brain, every single part, one by one, you have to pay attention. And then first starting from right side, then right portion of your whole body, and then left portion of your whole body. Slowly, you have to pay your awareness and then relax that part. Uh, Intentionally. All right. And then you have to pay awareness to your mental state. Mental state means what? Whatever thoughts are there during this yoga nidra or this process, whatever emotions, whatever thought process is going on, they are coming in and going on. You don't have to, stick to that one particular thought or one particular state of emotion, right? Whether it is happy or sad or, angry or, some anxiety, nothing else. You have to just see it and then let it go. So that way you have to relax your whole body. So physical body is relaxed, mental body is relaxed. So your whole body will get relaxed in within 20 to 30 minutes. And then sankalpa. Sankalpa means whatever sankalpa you want to raise for yourself, for your day, for your work, for your, some, duty to perform. Whatever sankalpa you um, just be there in your mind and just repeat it once, twice, and try to perform this whenever you awake and go to your work or perform your job. So that way, this practice Yoga Nidra is performed. All right, this is the last one. We'll do it now, and then rest we'll do on Monday. So Antarmona is again it is a type of meditation. It is given by Swami Satyananda Saraswati. Again, it is a practice for internal peace and awareness to your senses. Whatever sensory organs you are having, and then your working organs. Then awareness to your thoughts, leading to from thoughts to thoughtlessness. So that is the journey from thought to thoughtlessness. This is the journey of Antarmana. So your mental state at the end of this practice, your mental state will be without any thought. So you have to be the observer of thought, not the creator of the thought. So this is the basic, principle for doing this practice. You don't have to say anything during this practice. Just relax and just watch your thoughts. And from thoughts, you will lead to thoughtlessness. So this is Antarmana. So Vipassana we'll do on Monday. So I'm ending here today's lecture. If you want, you can ask something. You don't understand. Everything is clear?